चल रहा है। 8.4 एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। आई हैव टू, इसको मुझे इसके इक्वल करना है या इसको इसके इक्वल करना है, कैसे भी कर सकते हैं जैसे आसान लगे। अब देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रही हूँ, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। I told you in the last video, most of the time we try to convert the last 4 ratios into first 2. So cosecant theta I can write 1 by a sin theta. Cot theta I can write cos theta by a sin theta and its whole square. Take LCM inside the square. Square के अंदर ही लेंगे हम। Sin से sin cancel 1, sin से sin cancel cos 1 minus cos theta whole square अपॉन, नाउ सेपरेट स्क्वायर। देखिए अब हमारी अक्सर आदत होती है कि हम इसे ओपन कर आइडेंटिटी को सॉल्व करना शुरू करते हैं, a minus b whole square। इन द राइट हैंड साइड वी हैव ओनली 2 टर्म्स इन द न्यूमरेटर, सो नो नीड टू ओपन, no need to solve the identity, this keep it as it is, and this is sin square theta. I told you one identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. 1 minus cos theta whole square upon sin square theta. I can write in this way, 1 minus cos square theta, 1 minus cos theta whole square as it is. Now a square minus b square, factorize this, 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. 1 minus cos theta cancel with this. What is left? 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, that is equal to RHS. Once again, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर को मैंने इसको चेंज किया है फर्स्ट 2 की रेशियो में। लास्ट 4 रेशियोज को हम ट्राई करते हैं फर्स्ट 2 में, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड टेक एलसीएम एंड देन सेपरेट द स्क्वायर्स and this use identity and then again use algebraic identity and simplify. Next, देखिए सेकेंड पार्ट, cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a is equal to 2 secant a। हम इसे भी लेफ्ट हैंड साइड से ट्राई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a। देखिए सामने दिखाई दे रहा है हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है। सिंप्लीफाई सबसे पहला स्टेप हम एलसीएम लेते हैं, फिर हम कुछ और सोचेंगे। cos a into 1 plus sin a, 1 plus sin a cancel with this 1 plus sin a, so what is left? Cos a into cos a, cos square a, cos cancel with this cos, 1 plus sin a into 1 plus sin a, its whole square, cos square a plus, expand the identity, 1 square is 1 plus sin square a plus 2 sin a upon cos a into 1 plus sin a। Now identity जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज की है, cos square a plus sin square a is equal to 1। आपने आइडेंटिटी साइड पे लिखनी है, क्या यूज कर रहे हैं, cos square a plus sin square a is equal to 1 and this one as it is plus 2 sin a upon cos a into 1 plus sin a। 1 plus 1 2 plus 2 sin a upon cos a into 1 plus sin a। What is common from the numerator? 2. What is left? 1 plus sin a over cos a into 1 plus sin a। 1 plus sin a cancel with 1 plus sin a, and the reciprocal of cos is secant, 2 secant a, that is equal to RHS। Once again simplify, बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आइडेंटिटी आ गई उसको एक्सपेंड कर दिया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर ली और सिंप्लीफाई किया है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियोज सब अच्छे से हमें क्लियर होनी चाहिए, वो यूज होती हैं सभी।
Now the third part is very important question, this one. Tangent theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tangent theta is equal to 1 plus secant theta cosecant theta. लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, try convert each and every tangent cot in the terms of sin and cos. Sin theta by cos theta upon 1 minus cos theta upon sin theta प्लस cot क्या होता है, cos theta by sin theta upon tangent theta is sin theta by cos theta. Now sin theta by cos theta as it is, take the LCM of this portion. सिर्फ इतने का LCM लेना आपने, that is sin theta minus cos theta plus this as it is cos theta by sin theta, and take LCM of this portion only. Cos theta is the LCM, cos theta minus sin theta. LCM लेना आता है, cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 1 into cos theta, cos से cos कैंसल, sin into 1 sin theta. अब आगे देखिए, sin theta by cos theta, it's reciprocal. ये ऊपर जाकर यहाँ चेंज रेसिप्रोकल हो जाएगा, sin theta upon sin theta minus cos theta plus cos theta by sin theta and its reciprocal cos theta upon cos theta minus sin theta. Sin into sin, sin square theta upon cos theta into sin theta minus cos theta. Cos into cos, cos square theta. sin थीटा इंटू, देखिए यहाँ है मेरे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ है sin थीटा माइनस cos थीटा. अगर मेरे पास यहाँ पर भी sin माइनस cos हो जाए तो मेरे लिए एलसीएम लेना बहुत इजी हो जाएगा. सो व्हाट शुड आई डू, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ इसमें से, sin थीटा माइनस cos थीटा. यहाँ कौन सा सिंबल था, पॉजिटिव, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हमने कॉमन लिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. क्लियर? वंस अगेन मे आई एक्सप्लेन. क्या किया हमने, यहाँ से cos थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, sin थीटा माइनस cos थीटा, एंड हियर इज पॉजिटिव साइन, सो प्लस माइनस माइनस, राइट. नाउ टेक एलसीएम. cos थीटा sin थीटा सेपरेट टर्म्स हैं, ये एज इट इज आ जाएंगी प्रोडक्ट में. sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, दैट इज सेम थिंग, सो राइट इट वन टाइम. cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, दैट इज sin क्यूब थीटा माइनस sin से sin कैंसिल, sin माइनस cos से sin माइनस cos, cos इनटू cos स्क्वायर, cos क्यूब थीटा, a क्यूब माइनस b क्यूब. नाउ अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सारी आइडेंटिटीज अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक याद रहनी चाहिए. हाँ जी, देखिए अब साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अकॉर्डिंग टू दिस इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा. ये कैंसल. नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लिखेंगे कि आपने क्या यूज किया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय cos थीटा sin थीटा. डिवाइड सेपरेटली 1 बाय cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा cos थीटा. मैंने इसको इसके साथ भी नीचे अलग से रख दिया और इसके साथ भी, ये कैंसिल, ये 1 बन गया. cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, sin का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, क्या आ गया, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, दैट इज सेम थिंग, 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS. वंस अगेन मैंने जितने भी टेंजेंट कोड थे सबको साइन कोस में चेंज किया और उसको सिंप्लीफाई किया है एलसीएम लेकर. ये सिंप्लीफिकेशन है, ये हमें अपने आप करना होता है. सिंप्लीफिकेशन
सिंप्लीफिकेशन, तो उसके बाद बस यहाँ पर हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगी है, फिर उसके बाद यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। देखिए फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सीकेट ए अपॉन सीकेट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, इसे चेंज करें इनटू फर्स्ट टू रेशियो में 1 प्लस 1 बाय कोस ए अपॉन 1 बाय कोस ए। टेक एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, cos A is the LCM, cos A plus 1 upon 1 by cos A। क्या आ गया मेरे पास अब आगे? देखिए cos A plus 1 upon cos A and its reciprocal cos A upon 1 कैंसर, मेरे पास आ गया 1 plus cos A। अब मैं इसे और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। देखिए या तो हम इसको, दो मेथड है इसके, यहीं की यहीं छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को और आरएचएस को उठा के सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं, आरएचएस को सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। या देखिए एलएचएस से चले, ऐसी स्टेटमेंट आ गई कि अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म लग रही है मुझे और आगे फर्दर सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो हम आरएचएस को उठा के उसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। या दूसरा आरएचएस को ही देखा मैंने, उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस है, इसको हमने क्या किया 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, जैसे कि रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। किससे पता चला है मुझे? ये डिनोमिनेटर के आरएचएस से। 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से मेरे पास आरएचएस तो आ ही गया, आरएचएस का डिनोमिनेटर तो आ ही गया, यानी हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है क्योंकि वो तो आ ही गया। 1 माइनस कोस ए जो चाहिए वो है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस को साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, थीटा ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए क्या बन गया ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए दैट इज इक्वल टू आरएचएस। देखिए फिफ्थ पार्ट, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेट ए प्लस कोट ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जरा। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू कन्वर्ट लास्ट 4 रेशियोज इनटू फर्स्ट 2, बट इन दिस क्वेश्चन we have to convert first 2 into try to convert into last 4। हमें पहली 2 को आखिर की 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। और वो कैसे होगा? देखिए ये अगर मैं इसे लिखूं फर्स्ट 2 की फॉर्म में 1 बाय साइन ए, ये कोस बाय साइन ए, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, मैं यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करूंगी। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। कैसे पता चला? एक बार फिर से, कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए और कोट ए को कोस ए बाय साइन ए, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन, इसलिए मैं यहाँ पर भी साइन से डिवाइड कर रही हूँ। कोस ए अपॉन साइन ए, ईच एंड एवरी टर्म को करेंगे, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन, ये कैंसिल हो गया 1 बन जाए, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कैंसल्ड माइनस 1 बाय साइन ए। कोस बाय साइन क्या होता है कोट, माइनस 1 साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ए अपॉन कोस बाय साइन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। वंस अगेन आई एम राइटिंग दिस कोट ए, इस कोसिकेंट को मैं पहले लिख रही हूँ
-1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब मैं इस 1 को एक आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखूंगी, कौन सी वाली? थर्ड आइडेंटिटी, जो कि कोसिकेंट और कोट रेशियो को कनेक्ट करती है। देखिए क्या होता है, हमें मालूम है कोसिकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर a। मुझे तो 1 की वैल्यू लिखनी है, तो इस कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इस 1 की मैं वैल्यू लिख रही हूँ कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a। देखिए कोट a प्लस कोसिकेंट a माइनस कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a अपॉन नो चेंज, इसको कुछ नहीं कहना, एज इट इज बार बार लिखते रहें। आगे देखिए कोट a प्लस कोसिकेंट a, दिस एज इट इज माइनस एज इट इज। अब इसके फैक्टर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर बनाएंगे, देखना जरा ध्यान से। कोसिकेंट a माइनस कोट a इंटू कोसिकेंट a कोट a प्लस कोसिकेंट a माइनस, इसके फैक्टर बनाइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कोसिकेंट a प्लस कोट a इंटू कोसिकेंट a माइनस कोट a अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज कोट a प्लस कोसिकेंट a कोट a माइनस कोसिकेंट a प्लस 1। देखिए अब यहाँ से न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ रहा है? कोसिकेंट a प्लस कोट a या कोट a प्लस कोसिकेंट a, दैट इज सेम थिंग। कोट a प्लस कोसिकेंट a कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? ये स्टेप ध्यान से देखने का है। 1 लेफ्ट, ये कॉमन चला गया, ये बच गया, और इसके साथ माइनस भी है, माइनस का ध्यान रखते हुए ये इसको कॉमन बाहर भेज दीजिए, जो चला गया और ये रह गया। 1 माइनस कोसिकेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कोसिकेंट a, कोट नेगेटिव है तो पॉजिटिव। डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास? 1 माइनस कोसिकेंट a प्लस कोट a, कोट a माइनस कोसिकेंट a प्लस 1, ये दोनों चीजें सेम है। क्या बच गया? कोट a प्लस कोसिकेंट a, दैट इज इक्वल टू RHS। एक बार फिर से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें लास्ट 4 रेशियोज में चेंज करना है फर्स्ट 2 को। कैसे पता चलेगा, किस तरह से चेंज करें? RHS को देखो, इसको फर्स्ट 2 में चेंज करो। डिनोमिनेटर में दोनों के साइन आ रहा था, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई किया। फिर इस 1 को मैंने यहाँ साइड पे लिख के इसकी आइडेंटिटी लगाई है, और फिर इसके फैक्टर बना दिए बाय अलजेब्रिक। ए स्क्वायर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन आ गया, और फिर उसके बाद कैंसिल।